جب بھی اکیلے اللہ کی بات ہوگی تو بہت سارے لوگ جو ہے آپ کو گمراہی کے فتوے، کفر کے فتوے لگائیں گے، اور وہ ثابت کرنا چاہیں گے کہ ایک اللہ کے علاوہ بھی کسی سے ہوتا ہے۔ اور جب ایسے ماحول کریٹ ہوں گے، جب ایسے ماحول بنیں گے، تو اس وقت آٹومیٹیکلی دو جماعتیں بنیں گی۔ ایک جماعت جو ہے موحدوں کی جماعت ہوگی، جو کہ قرآن اور حدیث سے ان کو ثابت کر کے دیں گے کہ خالی ایک اللہ سے ہوتا ہے، بس اکیلے اللہ سے ہوتا ہے، سارا نظام اکیلا اللہ رب العزت چلانے والا ہے۔ اور دوسری طرف سے مشرکوں کی جماعت اٹھے گی، جو ثابت کرنے کی کوشش کرے گی کہ اکیلے اللہ سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارے ولی اللہ یا بزرگ یا اور بھی کوئی ہے، ان سے بھی ہوتا ہے۔ اسی کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے آج ایک 10 گستاخیاں ان کی لائی ہے، جو کفریہ عقیدہ ان کا ہے، جو گمراہی تک ان کو لے جاتا ہے، جو کفر تک ان کو لے جاتا ہے۔ ان 10 میں سے پہلی 5 گستاخیاں جو ہیں وہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کوئی کسر نہیں ان بدبختوں نے چھوڑی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پلس ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے سے۔ اور پھر 6 سے لے کر 9 تک جو گستاخیاں ہیں وہ انہوں نے رب کے ساتھ کسی کو شریک بٹھایا ہے، اور رب کے علاوہ بھی جو ہے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ رب کے علاوہ بھی کوئی سنتا ہے یا ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اور آخری والی گستاخی، 10ویں والی گستاخی جب آپ سنیں گے، وہاں سے آپ کو دور سے ہی پتہ لگ جائے گا، ایک عقل مند انسان اگر دیکھے گا وہ وہاں پر دیکھ پائے گا کہ بریلویوں کے تمام عقیدے جھوٹے اور من گھڑت ہیں اور سب فراڈ کے بنیاد پر گھڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں گستاخی نمبر 1۔ آپ کی سکرین کے اوپر جو ہے یہ بک اسرار المشتاق، اس میں انہوں نے لکھا ہے، وہی ایک حقیقت نما بن کے آیا، زمانے میں بہروپیہ بن کے آیا۔ ان بدبختوں نے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہروپیہ کہا ہے، اور جب دوسری طرف سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کو بلند کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بیان کرتے ہیں، اور ہم پہ گستاخ رسول کے فتوے لگتے ہیں، اور یہ بہروپیہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہے اور یہ عاشق رسول۔ اور دوسری گستاخی آپ کی سکرین کے اوپر ہدایہ کے بخشش میں انہوں نے لکھا ہے، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ یہ بدبخت لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلت پر لاکھوں سلام بھیجیں، اور ہم اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ایسے بلند کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ایک روشنی لے کر، ایک مقصد لے کر، ایک قرآن لے کر ہم تک آئے، جو دور فتنوں کا دور تھا، جس دور میں ہر طرح کی گمراہی تھی، اس دور کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں اللہ رب العزت کے نظام کو قائم کر کے دکھایا، اور ہم تک ہمارے صحابہ بھیجے، ہمیں ایک قرآن سے تعارف کرایا، ہمیں اللہ کا تعارف جس نے کرایا، جس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا، ہم اس کی تعریف کریں اور ہم گستاخ، اور آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلت پہ نعوذ باللہ درود سلام بھیجو اور آپ عاشق رسول۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ گستاخی نمبر 3 آپ کی سکرین کے اوپر یہ رہی، جال حق، جس میں انہوں نے لکھا ہے، انبیاءوں سے خطا ہو سکتی ہے۔ یہاں پر انہوں نے انبیاء کو خطا کار قرار دیا ہے۔ اب میں چپ بیٹھتا، لیکن دوسری ہی چوتھی گستاخی جو ہے انہوں نے لکھی ہے یہ مغفرت ذم میں، کہ اعلیٰ حضرت کی زبان یا قلم سے نقطے کے برابر بھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ اعلیٰ حضرت کو یہ معصوم ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور پیچھے تیسری جال حق والی گستاخی میں یہ خطا کار انبیاء علیہ السلام کو لکھتے ہیں اور ان کو خطا کار ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور خود کو اعلیٰ حضرت معصوم ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب اگر ہم دیکھا جائے یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ہے کہ انبیاء خطا کر سکتے ہیں لیکن اعلیٰ حضرت خطا نہیں کر سکتا۔ یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ہے۔ آپ ختم نبوت پر ڈاکے ڈالو، اور آپ عاشق رسول، اور ہمارے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہاولپور کے کورٹ میں اعلیٰ دتا قادیانی کے سامنے تحفظ ختم نبوت کے لیے اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے وہاں پر کھڑے ہو جائے، اور وہ کافر اور تم عاشق رسول ختم نبوت پر ڈاکہ مار کے، نہیں بھائی ایسا نہیں چلتا ہے۔ گستاخی نمبر 5 آپ کی سکرین پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صورت بشری میں ظاہراً کافروں کے ہم شکل تھے۔ او بے غیرتو، تم نے میرے نبی کو کافروں کی شکل کا بولا۔ بے غیرت انسانوں، اس سے بڑا کفر اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی گستاخی اب کیا ہو سکتی ہے؟ اور تم یہ کہہ کے بھی عاشق رسول، اور ہم یہ کہیں کہ کسی ماں نے ایسی خوبصورت چہرے والا، ایسے حسین چہرے والا، ایسے خوبصورت چہرے والا نبی پیدا نہیں کیا ہے، نہ کوئی اس روئے زمین پر آیا ہے، نہ کوئی آئے گا۔ ہم یہ کہہ کر بھی گستاخ رسول، اور تم ظاہراً کافروں کے ہم شکل کہہ کے بھی عاشق رسول، ایسا نہیں چلتا ہے۔ تو یہ 5 گستاخیاں جو ہیں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جہاں پر انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے،
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी और खत्म नबूवत पर डाका डालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिसके बारे में एक अकीदा भी अगर किसी ने गलत रखा तो वो कुफर तक पहुंच सकता है, उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतनी गुस्ताखियां, अरे गुस्ताखियां इतनी है कि टाइम की किल्लत की वजह से 10 ही में पेश कर रहा हूं, आगे मैं और पेश करूंगा। लेकिन जब ऐसे ऐसे गुस्ताखी के फतवे उन पर लगेंगे तो फिर हम पर कौन से फतवे लगते हैं, हम इसका इंतजार कर रहे हैं। तो अब अगली 4 गुस्ताखियां जो है ये आपने रब के साथ किसी को शरीक ठहराया है, ये रहा आपके दाऊदी साहब की ज़बानी और हामी साहब की ज़बानी। अगर कम मुरीद कुन जाय कामिल मुरीद गस कामिल मुरीद कुन जाय गस परेशानी मुरीद मेनिस पीरस करें आलम नोन पीर वाच तो मदद करना विचार कर वन हवा वादना तो ये सोन मोहम्मद शिरक वन दुरुद हुजूर शिरक अगर दे आप बला उस्ताद किश्ती मदद कुन या खाजा मुईनुद्दीन शिरक। तो इसमें दाऊदी साहब ये साबित करना चाहते हैं कि हम नबी से भी मांगते हैं, अल्लाह के सिवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दे सकते हैं। और हामी साहब साबित करना चाहते हैं कि हम पे जो है ये फतवे लगाए जाते हैं कि उसको मांगना शिरक, इसको मांगना शिरक, ये शिरक नहीं है। मतलब कि शिरक को साबित करना चाहते हैं कि ये शिरक नहीं है कुरान और हदीस से। तो लेकिन फिर हम इनसे सूरह ज़ुमर आयत नंबर 3 सामने डालते हैं, जहां पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लिखते हैं कि जब अबू जहल और अबू लहब पार्टी से ये कहने आता था, पूछने आता था कि तुम लाख, उज़्ज़ा और मनातिस इनकी इबादत क्यों करते हो, ये बुतों के नाम थे उस वक़्त के, तुम इनकी इबादत क्यों करते हो। तो अबू जहल और पार्टी उनकी कहती थी सामने से कि हम रब जानकर इनकी इबादत नहीं करते हैं, बल्कि ये भी कुछ ताकत रखते हैं अल्लाह की बारगाह में, ये भी हमारी सिफारिश करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। तो उस दिन का मुशरिक भी यही कहता था, और आज का अगर हम मुशरिक यहाँ पर देखें ये भी यही कहता है, अरे रब तो रब है, हम तो इनसे रब जानकर इबादत नहीं करते हैं, बल्कि हमारी सिफारिशें उनके सामने करें। अब बताओ, यहाँ पर तुम अबू जहल और अबू लहब की पार्टी में खड़े हो गए, ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पार्टी में खड़े हो। और दूसरी तरफ बुखारी 1010 बीच में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, आप उनके खिलाफ खड़े हो गए वहां पर कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह, जब हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने होते थे हम उनसे दुआ कराते थे और तू हमारी सुनता था, बारिशें नाजिल करता था, लेकिन अब जो कि वो हम में मौजूद नहीं है, तो अब हम उनके चचा से दुआ कराते हैं, या अल्लाह तू बारिश अता कर दे। तो अब हमें बताइए कि आप अबू जहल और अबू लहब की पार्टी में खड़े हैं, ना कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पार्टी में खड़े हैं। आप तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ हो गए यहाँ पर। तो ये रही 6ठी गुस्ताखी। और अब है 7वीं, 8वीं और 9वीं गुस्ताखी, जिसमें इन्होंने इल्मे गैब पर डाका डाला है और जिसमें इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि अल्लाह के सिवा भी किसी में यह ताकत है कि वो किसी की जान ले सकता है। 7वीं और 8वीं और 9वीं गुस्ताखी आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये बुक आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है, इसके पेज नंबर 339 में लिखते हैं कि मेरे मुरीद अगर मुशरिक में होंगे और मैं मगरिब में होऊंगा। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पर जो है इन्होंने लिखा है, मेरे मुरीद अगर मशरिक में होंगे और मैं मगरिब में होऊंगा, और मेरे मुरीद का यजार खुल जाए, मेरे मुरीद का सतर खुल जाए, उसका पजामा गिर जाए, तो मुझ में यह ताकत है कि मैं उसके सतर को ढांप सकता हूँ। और इसी के नीचे इन्होंने लिखा है कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अपने मुरीदों की हिफाजत करूँ। और 8वीं गुस्ताखी, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जिन्नात का बादशाह पेज नंबर 13 पर लिखते हैं कि एक मुरीद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, तो उन्होंने एक लोटा गलती से दूसरी जानिब रखा। उन्होंने रखना तो एक साइड की तरफ था लेकिन दूसरी साइड रखा, और इस पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को इतना मलाल, इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा उनको आ गया कि उन्होंने एक जलाल भरी नजर अपने मुरीद की तरफ देखी, और वो नजर ऐसी थी कि वो मुरीद जो है इस नजर को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो इस दुनिया से जा बसा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब आप मुझे बताइए कि ये वाली ताकत सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रख सकता है कि किसी की जान ले सकता है, ना कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह या और कोई भी वली। किसी में ऐसी ताकत नहीं है कि वो किसी को जिंदा कर सकता है या किसी को मार सकता है। और 9वीं गुस्ताखी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही, का नाम है अल कादिर और गौस पाक का नाम अब्दुल कादिर। अल्लाह के नामों में ये अल कादिर जो है ना, इसमें सारी बातें आ जाती हैं, तो पता क्या चला वो अल कादिर है। उसके जलवे देखने हो तो अब्दुल कादिर को। इसमें यहाँ पे इन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह से बढ़कर दर्जा दिया है। तो मैंने तभी बोला था कि इल्मे गैब पर डाका और अल्लाह के बराबर शरीक, और तीसरी चीज कि अल्लाह के अलावा भी कोई मौत दे सकता है। ये इन 3 गुस्ताखियों में तीनों चीजें हैं। देखो ये जो गुस्ताखी नंबर 6 और 7 है ना,
जो ये लोटे वाली और मुरीद वाली, ये हंसने की बात नहीं है, इसको अफसोस करने की बात है, क्योंकि इसमें इन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को रब के बराबर खड़ा कर दिया कि इनमें भी ताकत है किसी की जान ले सके। तो इसमें हंसने की बात नहीं है, इसमें अफसोस की बात है कि कितना बड़ा झूठ इन्होंने मंसूब किया है। तभी मैंने इसको गुस्ताखी में लिखा है, तभी मैंने इसको कुफरिया अकीदे में इस गुस्ताखी को मैंने शामिल किया है। और ये जो यजार वाली बात है, मगरिब में मुरीद हो या मशरिक में मुरीद हो, मैं उसको उसके यजार को ढांप सकता हूँ। तो ये वाली बात मतलब कि उनके अंदर इल्म गैब भी आ गया, उनको पता लग गया कि मेरे मुरीद के साथ ऐसी बात हुई, और वो वहां पर पहुंच गए और उन्होंने जो है उस अपने मुरीद की वहां पर मदद भी कर दी है। रब की सिफात है, ये हंसने वाली बात थोड़ी है। तो फिर जब हम इनके सामने सूरह आराफ आयत नंबर 188 डालते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी से फरमा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दो कि मैं खुद अपनी जान के बारे में किसी नफा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता, जो अल्लाह चाहे, और न मैं किसी गैब के बारे में जानता हूं। अगर मैं जानता होता तो मैंने बहुत सारी खैर जमा की होती, मैं कभी नुकसान में, मैं कभी घाटे में नहीं गिरता अगर मुझे इल्म गैब होता। तो यहां पर जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान के बारे में कोई इख्तियार नहीं रखते, तो आपके वलीउल्लाह कैसे जो है किसी की जान ले भी सकते और किसी की जान बचा भी सकते। तो फिर हम इनको यहां से कहते हैं जाके फलस्तीन में देखो ना, वहां पे उन लोगों की मदद करो। नहीं जी ये ऐसे होता है वैसे नहीं, तो फिर ऐसा ही होता है कि फिर आपका पीर किसी की जान नहीं ले सकता अगर ऐसा यहां पर नहीं होता। तो अब गुस्ताखी नंबर 10, बहुत बड़ी गुस्ताखी मेरी नजरों में, आप सब जानते होंगे मेरी नजरों में बहुत बड़ी गुस्ताखी। क्यों मैं आगे आपको बोलता हूं, इसमें अहकाम शरीयत में लिखते हैं जिसमें आला हजरत ने देवबंदियों का, वहाबियों का, नजदियों का प्लस कादियानी भी शामिल बीच में किए हैं। इनका ज़िबिया, अपने ज़िबिहे पर अगर ये 100 बार भी अल्लाह का नाम ले तब भी नाजायज और हराम है। और दूसरी किताब में इन्होंने फतवा दिया है कि इनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर है। और इस किताब में सामने लिखा है कि यहूद और नसारा का ज़बिया जायज है, हलाल है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर हम इनको सामने से बोलते हैं जनाब हज करने क्यों जाते हो, वहां पर वहाबियों के कालीन क्यों यूज करते हो, वहां पर वहाबियों का खाते क्यों हो, वहां पर वहाबियों के हाथ का जमजम जिस बोतल में होता है वो पीते क्यों हो। नहीं जी ऐसा नहीं होता, हम जाते हैं हज करने, हम वो करते हैं ये करते हैं, लेकिन फिर तो आपके आला हजरत कहते हैं इनके कुफर पे शक करने वाला भी काफिर है, फिर तो तुमको कलमा पढ़ना पड़ेगा। और मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी दौर में, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी दौर में फरमाते थे, जब आखिरी वक्त आया था उस टाइम पे फरमाते थे, बार बार यही चीज़ फरमाते थे कि यहूद और नसारा पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लानत, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को ईदगाह सजदा गाह बना दिया, अंबियाओं को बीच में लाया, और तुम उनकी तारीफ में कहो ये, और बाकी जो है सारे काफिर, बाकी जो है सारे मुर्तद। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई कि उम्मत को फ़ायदा हो सके, बहुत सारे हमारे जवानों को फ़ायदा हो सके। वो आँख से ये पट्टी उतार कर एक एज अ मुस्लिम होकर आप देखें, ये ना कि मैं बरेलवी हूँ, मैं अहले सुन्नत से हूँ, मैं दाऊदी का मानने वाला हूँ, नहीं, बल्कि आप उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले बनने चाहिए, जिसको मानना हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारी जन्नत का हिस्सा है। और ये मसला छोटा मसला नहीं है। आप खुद देखिए कि जो इतनी गुस्ताखियाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियाँ, ये सिर्फ 10 है, मैं 100 दिखा सकता हूँ आपको, मेरे साथ कांटेक्ट करें। तो हम तहकीक करें, तहकीक का जज्बा हमारे अंदर आए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हम पर दीन खोले और हमें सही दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो उनसे पूछें जिन्होंने ये गुस्ताखियाँ की हैं, उनकी आंखों में आंखें डालिए और ये कहिए कि नो मोर एक्सक्यूज, नो मोर लाइज, इट्स टाइम टू फेस द ट्रुथ।